Hello my dear students, in the last class of trigonometry, we have done with trigonometric ratios and the definition of trigonometry, right? We have find out 6 trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta, cot theta and tan theta. Clear? So, in today's class, I will find out the trigonometric ratios for some specific angles, and also if time permits, I will extend it to trigonometric identities. There are 3 trigonometric identities, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So I will make proof of these 3 identities, trigonometric identities, and will extend further later on. So let us start. So there are 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Clear? So we will find out the values of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta for some specific angles, that is for 0 degree, for 30 degree, for 45 degrees, for 60 degrees and for 90 degrees. Clear? So to find out the values, I will write here 0, 1, 2, 3 and 4, and I will divide these numbers by 4. Clear? Then I will make root of these values and I have to find out the values, that is sin theta came to be 0, sin 30 came to be 1 by 2, sin 45 found out to be 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1. Clear? The value for sin 90 becomes the value for cos 0, that is 1. The value for sin 60 becomes the value for cos 30, that is root 3 by 2. The value for sin 45 is same as the value for cos 45, that is 1 by root 2. Then the value for sin 30 becomes the value for cos 60, and the value for sin 0 becomes the value for cos 90. So we have found out that the values for sin and cos for 0 to 90 degrees. Clear? Now we also know that tan theta is equal to perpendicular upon base, and sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Also cos theta is equal to base upon hypotenuse. If I divide sin theta by cos theta, I will going to get p by b, because the denominator of both sin theta and cos theta are same, and numerator of sin theta will become the numerator for the value of tan theta, and the denominator for tan theta will become the numerator of the cos theta. So we get tan theta is equal to sin theta upon cos theta by trigonometric identities. So if I divide this sin theta by cos theta values at these specific angles, I will get the other values, right? So tan 0 will be 0, 0 by 1 will be 0, and tan 30 will be 1 by root 3. If I divide 1 by 2 by root 3 by 2, I will get 1 by root 3. Tan 45 will be 1, because 1 by root 2 divided by 1 by root 2 will be 1. Tan 60 will be root 3, because root 3 by 2 divided by 1 by 2 becomes root 3, and 1 by 0 becomes not defined or infinite. So anything by 0, anything by 0, anything by 0, any number by 0 becomes infinite. This is the important point. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 हो तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है या नॉट डिफाइन हो जाता है. क्लियर? सो
cot theta is the inverse of the tan theta here. So cot 0 will be 1 by 0. 1 by 0 is again infinite. This will be root 3, this will be 1, this will be 1 by root 3, and this will be 0. This will be 0. Now sec theta. Sec theta is the inverse of cos theta. So cos 1 by 1 is 1. Here 2 by root 3. Here root 2. Here 2. And this by 0. 1 by 0 will again be infinite. So for cosec theta we will find out. So the value for cosec 0 is 1 by 0, that is again not defined. Clear? So the value for cosec 30 will be 2. The value for cosec 45 will be root 2. The value for cosec 60 will be 2 by root 3. And the value for cosec 90 will be 1. So there are almost 5, 6, 30 values of different trigonometric ratios. Clear? So now we will discuss the trigonometric ratios for some complementary angles. So trigonometric ratios, T ratios for complementary angles. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, सो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो होगा 90 डिग्री. अगर मैं एंगल बी की बात करता हूं, यहां पे ए, बी और सी अगर मेरे पास में वैल्यू होती है, इसको मैं सी नेमिंग कर देता हूं, और इसको मैं बी नेमिंग कर देता हूं. दिस एंगल थीटा को मैंने क्या लेके चल रहा हूं, इसको मैं एंगल ए को मैं क्या लेके चल रहा हूं, थीटा लेके चल रहा हूं, तो इसको मैं थीटा नेमिंग कर देता हूं. तो अपने आप ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. क्लियर है कहानी. अब देखिए अगर मैं थीटा को कंसीडर कर रहा हूं विथ रेफरेंस टू दिस थीटा, बेस क्या हो जाएगा, एसी बेस हो जाएगा. एंड विथ रेफरेंस टू दिस एंगल 90 माइनस थीटा, बेस हो जाएगा बीसी. तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर मैं साइन की वैल्यू पता करने की कोशिश करता हूं, साइन थीटा की वैल्यू पता करता हूं. साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा फॉर एंगल ए, साइन ए भी कह सकते हैं हम इसको, साइन ए या साइन थीटा इसको बोलूंगा, साइन ए भी बोल सकता हूं मैं इसको, साइन ए या साइन थीटा में बोलूंगा. अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पता करता हूं तो क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर बीसी है, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनियस ए बी है, हाइपोटेनियस है ए बी. क्लियर? ये हो गया मेरा साइन थीटा या साइन ए. अगर मैं कॉस बी की बात करता हूं, मतलब ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा. क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाना है इसे. ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या होगा यहां पे, बीसी, बेस होगा यहां पे बीसी अपॉन हाइपोटेनियस होगा ए बी. देखिए अगर ये दो रेशियोज इक्वल हो रहे हैं, बीसी अपॉन ए बी यहां भी मुझे दिख रहा है और बीसी अपॉन ए बी मुझे यहां भी दिख रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, और उससे भी अच्छा मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. तो मेरे पास में फर्स्ट जो फॉर्मूला आ गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. मेरे पास में ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर कहानी. अभी दूसरी चीज मैं पता करने की कोशिश करता हूं. दूसरी चीज क्या है, अगर मैं टेन थीटा निकालूं, देखिए अब टेन मेरे पास में क्या है, ए या टेन थीटा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहां पे बीसी अपॉन बेस है यहां पे AC, बेस है यहां पे AC. क्लियर?
और यहीं पर मैं अगर cot B निकालता हूं, cot B निकालता हूं या cot 90 माइनस थीटा निकालता हूं तो क्या होगा? cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है cot थीटा के लिए? यह है BC, यह है यहां पे BC, और परपेंडिकुलर क्या है? AC, परपेंडिकुलर है यहां पे AC। सो अगेन देखिए यहां पे BC अपॉन AC आ गया, यहां पे भी BC अपॉन AC आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। क्या मैं कह सकता हूं? यस, ये मैं कह सकता हूं। तो दूसरा हमारे पास में क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। क्लियर? और सेम चीज होगी cot थीटा इज इक्वल टू cot 10 90 माइनस थीटा भी होगा, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा भी होगा। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि तीसरा फॉर्मूला जो मेरे पास में आ रहा है, यहां पे आ रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, और फोर्थ वन इज cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास चार फॉर्मूले आ गए। अभी हम लोग sec थीटा पता करने वाले हैं। sec थीटा या sec a। तो sec a अगर मैं लेता हूं यहां तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस क्या है? यहां पे हाइपोटेनियस है यहां पे AB, और बेस क्या है? AC। क्लियर? नाउ अगर मैं cosec थीटा पता करूं, cosec थीटा नहीं पता करूंगा, cosec A पता करूंगा, या cosec 90 माइनस थीटा पता करने वाला हूं मैं। तो cosec 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा इज B, cosec B। अगर मैं cosec B पता करता हूं, cosec B, तो cosec B इज इक्वल टू हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा मतलब हो जाएगा sin थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है भाई? यहां पे AB है, और परपेंडिकुलर क्या है? AC है। सो यहां पर जब आप देखेंगे ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है कि मैं यहां लिख सकता हूं बड़े आराम से कि sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, या सिक्स्थ में ये लिख सकता हूं यहां पे cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो अपने पास में 6 आइडेंटिटीज और आ चुकी है, 6 आइडेंटिटीज और आ चुकी है जो ये कहती है कि भाई sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, एज वेल एज cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। इनके सारे के प्रूफ मैंने आपको बता दिए हैं।